کچھ عرصہ نہیں گزرا یہاں کچھ لوگ جو دل محسوس کرتا تھا الگ اعلان کرے چاک دیوانوں میں ہوتا تھا شمار کا قضا سے کھیلتے تھے وقت کے الزام کرتے تھے. تاریخ 25 دن سوموار مہینہ دسمبر سال 1876. مکان وسیع مینشن مقام کھارا شہر کراچی دیش ہندوستان اور انگریز حکمران. ادھر مؤذن اذان دیتا ہے ادھر پوجا جنا کے ہاں مسلمانوں کی امیدوں کا سورج شروع ہوتا ہے. آپ کا احساس دلایا ہمیں جس نے حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے خطرے سے غلامی نے بچایا ہمیں جس نے خطرے سے غلامی نے بچایا ہمیں جس نے آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے. Lesson theory practically that each corner of the subcontinent resolved with a single word. Let رہے پاکستان بچ رہے گا ہندوستان. It was the result of his extraordinary leadership that on 23 March 1940 the Pakistan Revolution was presented at the birth of Minar Pakistan Lahore and the Pakistan movement entered its new phase. Life had a broad West-Atlantic ideal vision and a wide sense of practical work, which guided the nation over the path of a unique course and eventually on 14 August 1947. روشنی کی کرنیں آج بھی پاکستان کی شکل میں اس عالم کو منور کر رہی ہیں. خواب غفلت میں تھی ملت اور تو خواب غفلت میں تھی ملت اور تو بیدار تھا. کارواں بکھرا پڑا تھا جس کا تو سلار تھا. 14 خواب غفلت میں تھی ملت اور تو بیدار تھا. کارواں بکھرا پڑا تھا جس کا تو سالار تھا. جناب سر معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. آج کے اس پروگرام اور عظیم الشان تقریب میں مجھے جس موضوع پر لب گشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح. پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے, سندھی بلوچی سرحدی پٹھان چل پڑے, گھر بار چھوڑ بے سرو سامان چل پڑے, ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے اور قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان, کیونکہ یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان. مگر جناب اعلیٰ رخ بدلیے اور سنیے, جیے سندھ جیے مہاجر جیے پٹھان کے نعرے, تیرا صبح میرا صبح سنو دھیس کے نعرے, لال پیلے نیلے جھنڈوں کے نعرے. کبھی آج میں یہ کہنے پر حق بچ جاؤں کہ جس کی تمنا یہ وہ سحر تو نہیں, قائد کی تب و دا کا سوال یہ تو نہیں, مسئلے ہوئے جذبے تو کہیں کچلے ہوئے جذبے, اقبال کا وہ خواب نگر یہ تو نہیں. جناب سر
تیری دانش تیری حکمت تیرا ایمان. نجات اہل ہندوستان, حیات اہل پاکستان. Today the topic of speech which I am going to deliver is the political personality of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah started his political career with Indian National Congress in 1906. Then after 7 years he joined the Muslim League in 1930. In these early years of the political culture, Jinnah advocated Hindu-Muslim unity, helping to shape the Congress and the All India Muslim League. आजम वाहिद वकील थे जो मुसलमान थे. उनकी उम्र 20 साल की थी. उनकी जहानत की वजह से वान ऑफ इंग्लैंड ने उन्हें अपने यहाँ आने की दावत दी. हैरतुल सलाहियतों की बिना पर सरफरोज शाह जैसे केस लिया और उसे जीत के दिखाया. वेटरोस्टर फिरोज शाह खुद हैरान रह गए. तो दुरानूर की दुनिया का वर्ल्ड ऑफ लाइन कहा जाने लगा. उनकी दलील में ताकत थी, लहजा एतमाद से भरपूर था, अंदाज धीमा और दिल नशीन था. कायद-ए-आज़म के इस्तिस्ना अब तारीख साज शख्सियत थे. जो कहा वो सच कर दिखाया. तारीख में इनका नाम रोशन सितार से लिखा गया. दलील to get it done. परचम हिलाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के. हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के. पोएट्री ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. सच्चाई के अनमोल उसूलों को संभाला, सच्चाई के अनमोल उसूलों को संभाला. जिन्ना तेरे पैगाम में जादू का निराला. थैंक यू एवरीवन. मोहम्मद अली जिन्ना भी अज़मत के इन्हीं उसूलों पर पूरा उतरते थे. इनकी शख्सियत, नफासत, खुददारी और खुद एतमादी लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, बल्कि मैं तो कहूँगी नामुमकिन है, क्योंकि जिन सब ज़वाबित की तवक्को वो दूसरों से करते थे, इनकी पाबंदी पहले खुद किया करते थे. इसकी मिसाल पाकिस्तान की काबीना की इजलास में मिलती है. इस इजलास में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मौजूद थे. एडीसी गुल हुसैन ने कायद-ए-आज़म से पूछा, सर इजलास में मौजूद बुजुर्गों को चाय पेश की जाए या कॉफी? आपने चौंक कर सर उठाया और फरमाया कि वो लोग घरों से चाय या कॉफी पीकर नहीं आते. जिसे चाय या कॉफी पीनी है वो घर जाकर पिए. कौन का पैसा कौन के लिए है? बुजुर्ग के लिए नहीं. सल्ले अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब सदर, मेरे मौजूद उस्ताद कराम और अजीज हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. और इनकी जिंदगी के आखिरी ऐलान. जनाब सदर, आज जुम्मे रोजनामा जंग में जो 1988 में शे हुआ, यानी कायद की वफात के 40 साल बाद मैं इस पे नजर सानी कर रही हूँ. लाहौर के अस्पताल में टीबी के डॉक्टर रियाज अली शाह अपनी डायरी में वो लम्हात कलम बंद किए हैं. वो कहते हैं कि जब हम जियारत शहर में इनके घर दाखिल हुए तो कायद निहायत नहीफ और नातवाना जिस्म के साथ खजूशी के साथ मुसाफा करते हैं और पूछते हैं कि आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो ना हुई. जियारी वकार मर्जुल मौत में मुब्तला शख्स बाइखलाक और इंकिसारी की एक आला मिसाल था. ज्यादा बात करना इनके लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन वो हमसे कुछ कहना चाहते थे. तुम जानते हो, जब मुझे ये एहसास होता है कि पाकिस्तान बन चुका है तो मेरी रूह को किस कदर इत्मीनान पहुंचता है. ये मुश्किल काम था और मैं कभी न कर सकता था. मेरे रसूल का रूहानी फैज़ है कि ये खित्ता वजूद में आया और अब पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो खिलाफत राशिदा कायम करें. अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा. मुसलमानों को पूरी कौम की बादशाह देगा. पाकिस्तान में बहुत कुछ है. कौमें अच्छे अखलाक से भूलती बदअखलाकी बुराइयों से नसीबो नाबूद हो जाती है. जियारी वकार वो मरते
आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यौम विलादत का दिन जिस अंदाज से मनाया गया, मैं कहता हूँ कि हक को अदा नहीं हो सकता, लेकिन हम बहुत करीब पहुँच गए हक की अदायगी के करीब। हमारी ये नन्ही नन्ही बच्चियाँ और मासूम अपनी मासूम और पाक जबानों से जिस अंदाज से कायदे आज़म की ज़िंदगी पर रोशनी डाल कर यहाँ गई हैं और जिस अंदाज से उन्होंने मिली नगरों पर उनको खराज तहसीन पेश किया है, इसमें कोई मुझे कमी नज़र नहीं आई। इसके लिए मैं आपकी असातिज़ा और आपकी जो सामने जो असातिज़ा मौजूद हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको इनकी कामयाब प्रोग्राम पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उससे पहले बच्चों ने इस अंदाज से अपने कायद की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स होंगी, लेकिन ये तो पॉलिटिशियन नज़र आ रही हैं। उनमें बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो आने वाले वक्त में बेहतरीन पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट्स बन सकती हैं, बल्कि इसमें इतनी कुतुब लिख सकती हैं कि आने वाले वक्त उनकी किताबों से मुस्तफीद हो सकता है। कौम बेटा हमेशा इल्म से तरक्की करती है। इल्म ही एक वो रास्ता है, दीनी और दुनियावी इल्म अलग नहीं है। दीनी इल्म हमें राह दिखाता है, दुनियावी इल्म अल्लाह ने जो हमें अता किए हैं उनसे हम इंसानों की जितनी मुमकिन होती है खिदमत करते हैं। जो भी शुबा है तालीम का, अगर उसमें इखलास के साथ मेहनत की जाए, जो कि माशाअल्लाह आप से बहुत सी तलबा और तलबात असातिज़ा कर रही हैं, बिला वजह बगैर मेहनत के इतना कुछ नहीं होता। जो हमारी जिंदा आंखों ने देखा, प्यारे बच्चों, आप भी अपने घरों में अपने टाइम टेबल को इस अंदाज से लिख लें कि आपका हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरे, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजरे। यकीन जाने हमारे मुल्क पर नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया पर उसके असरात होंगे। तो तरह से इस मदरसे से बहुत सी बच्चियाँ हमारी आलम दीन होंगी और दीन की खिदमत करेंगी, इस मुल्क की खिदमत करेंगी और आने वाली नस्लों को हमारे ये पैगाम पहुँचाएंगी कि कामयाबी है तो अल्लाह के अहकाम पर, नाकामी है तो दूसरे रास्ते पर। अल्लाह हमें उस बुरी वक्त से बचाए और उस रास्ते से हमें बचाए और अपने अहकाम के मुताबिक तायात ज़िंदगी को सबूत करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा हमेशा कायम और दायम रखे और हमारे बच्चों का बेहतरीन, आने वाली नस्लों का बेहतरीन घर बनाए और हमारी अच्छी शनाख्त दुनिया में बनाए। आमीन।